Now this is the question given here. F is x comma 1 by x square where x belongs to real number, x is plus minus 1. What does it mean? Function ये कह रहा है this function is defined such a way that x have the image this. इसका मतलब function आपका बन रहा है fx is 1 by 1 minus x square. Now they are asking domain and range you should calculate here. The range domain to r minus 1 comma minus 1. What should be the domain of the function? हाँ जी. Sir, f of x is also equals to x ना मतलब f of x तो y होता है ना, y की वैल्यू ये दी हुई है 1 by 1 minus x square. नहीं सर, मतलब f of x is मतलब वो दो गिवन है ना x, 1 minus x square वाले में. Shows कि ये फंक्शन है where x is the element and its image is this. तो आप अगर एलिमेंट x लेते हैं तो उसकी इमेज क्या आती है यहाँ पे? वो आती है fx, that is y. और वो fx क्या दिया हुआ है आपको? 1 by 1 minus x square. y is 1 by 1 minus x square. All real number plus 1 and minus 1. सही है? हाँ यस सर. अब बोलो, पहले बोलो डोमेन क्या होगा? What is domain of the function? All real numbers. We will write this as 1 minus x into 1 plus x. We'll write this way. Domain of the function की अगर हम बात करेंगे तो we will say all the real number except क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता और -1 नहीं हो सकता. तो -1, 1 not possible. This is the domain of the function. Now we consider the range. When you want the range, we will write this as y. Please do it. Yes, what I should write here? Sir, 1 minus x square will be 1 by y. Under root 5 minus 1 by 1 minus 1 by y come out to be x square. Or what should be x here? It will be under root 1 minus 1 by y plus and minus. Yes or no? Or I should say plus minus under Yes sir. y minus 1 by y. ये आपका रिजल्ट है. Yes. What is the range calculation here? क्या कंडीशन आनी चाहिए? दो cases होंगे तो y is not equal. Greater than 0 or ये equals to. क्वांटिटी आपकी हमेशा greater than or equal to 0 होना चाहिए. Right or no? Yes sir. Yes sir. So I should say y minus 1 by y has to be greater than or equal to 0. Clear? Yes sir. Then we go on number line. इसको आप y minus 0 लिखेंगे. Now go on number line now. My 0 or 1. 0 and 1. Yes. 1. 0 से कम वैल्यू रखी. Minus -1 1 देख लो. ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, नेट प्लस हो जाएगा. Plus 0 से 1 के बीच Minus. करके देख लो. ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये माइनस हो. अबव 1 रखेंगे तो दोनों प्लस आ जाएगा, ये प्लस. What your answer must be? Sir, minus greater than मतलब यूनियन वाला. कह रहा है. एक और चीज दी हुई Minus है in- यहाँ पे. y 0 नहीं हो सकता. y should Minus infinity से 0 not included. Union 1 से. So now what is the equation? This is 0 to 1 coming greater than or equal to 0 means this part and this part except This part union. so we will 0. say the range of the function will be minus infinity to 0. 0 not included. Union 1 1 to included. infinity.
Yes, sir. Is it right? y1 हो सकता है y1 क्यों नहीं हो सकता? होना सर x नहीं हो सकता ना हाँ x नहीं हो सकता, 1 y तो हो सकता है, y1 हो सकता है, y1 रखो जरा, यहाँ पे क्या आएगा 0 y1, तो दैट इज 0, यस इक्वल टू 0 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. fx is equal to ax minus b by cx minus b. fx is ax minus b by cx minus d. Find the domain and range of the function. Question is, find what is domain and the range of the function. सर ए एंड बी आर मतलब नंबर्स A B कोई भी रियल नंबर है. सर all real numbers except d by c सर minus Yes. Sir, x should not be c upon d. D upon c. डी अपॉन सी एंड बी अपॉन ए. Will be all the real number except D by C. Yeah. D by c. Then एंड go, सर बी बाय ए. अच्छा 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 ठीक है. go for range, please. We'll take this as by. I write down ax minus b is c by x minus by. Right or no? yes ये टर्म यहां लानी पड़ेगी. ax minus c by x will be b minus dy. What is common here? X. So it will come a minus cy is b minus dy. Or what x will be? b minus dy by a minus cy. What x y should not be? Range बताओ भाई. ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस ए बाय सी. y minus सॉरी सर ए बाय सी सॉरी सर ए बाय सी. a by c नहीं होना चाहिए. राइट. सर हाँ जी. सर एक्चुअली मेरे मोबाइल की बैटरी परसेंटेज लो है तो सर मैं एकदम से लीव हो सकता हूँ अभी. तो सर एक बार आप रिकॉर्ड करके रख लेना मतलब. हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं. ठीक है. Next question is fx is equal to modulus of x minus 1. चलिए डोमेन बताइए और रेंज बताइए. Find the domain of this function and the range of this function. सर ऑल द रियल नंबर्स. नहीं Domain सर. of the real numbers, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर Domain- पर सर मॉड जीरो तो जीरो. सर एक चीज पूछनी थी. मॉड जीरो को जब अपन ओपन मॉड एक्स माइनस वन को जब अपन ओपन करते हैं तो ऐसा निकलता है ना रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई कहाँ से आ स्क्वायर गया? प्लस वन. सर जब मॉड्यूलस खुलता है तब रूट ही तो आता है ए स्क्वायर. क्यों मॉड को खोलेंगे तो प्लस माइनस क्यों आएगा? मॉडुलस की तो प्रॉपर्टी बताइए आपको. नो नहीं सर अंडर रूट आता है ना मॉड्यूलस खुलता है जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. to be minus x if x is less than 0. सर ये नहीं पूछ रहा मैं ऐसे पूछ रहा था सर. than or equal to 0 it will be x. ये आपने पढ़ा है. सर हमने स्ट्रेट लाइन में उसको कहा था ना कि मतलब जो बेटा इसमें इक्वल टू y करके सॉल्व नहीं कर रहे हो आप. आप तो केवल ये डिसाइड कर रहे हो कि यहाँ पर वैल्यू क्या रखी जा सकती है. आप यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू लिखो, ये आपको रियल वैल्यू देगा या नहीं देगा, मुझे तो ये बात करके दिखाओ. You are not solving it. I'm asking what value of x you can place it that you will get a real number. यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको इंफिनिटी बना सकती है, जो इसको इमेजिनरी बना सकती है. इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? कोई भी रियल नंबर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली.
व्हाट अबाउट सर मुझे एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। सर अपन ऐसे पढ़ते हैं ना कि जब मॉड्यूलस खुलता है तब अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है मॉड बेटा में। वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। वो ये होता है z is x plus iota y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मॉडुलस अगर आप करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं। हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की। रियल नंबर में ऐसे डिफाइन होता है कि अंदर की क्वांटिटी अगर माइनस है तो एक माइनस आप एक्स्ट्रा लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो सिंपली प्लस एक्स है। व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? इसको आप y लेंगे, व्हाट विल बी माय रेंज दिस टाइम? इसका आंसर कैसा आएगा मुझे ये बता दो। इसका आंसर हमेशा प्लस आएगा, माइनस आने का चांस ही नहीं है। मॉडुलस एक्स, आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, इसका आंसर हमेशा कैसा आएगा? प्लस आएगा। ये आपके यहाँ पे ऑल द रियल नंबर आपने रखे, बट व्हेन यू टेक द y हियर और वी विल से द फंक्शंस इमेज, -1 की इमेज बताओ जरा क्या आएगी? मॉडुलस ऑफ -2, तो +2 हो जाएगा। -2 डाल के देखो, +3 आएगा। -5 डाल के देखो, +6 आएगा। 2 डाला 1 आएगा। 1 डाल दिया 0 आएगा। 0 आएगा। 2 डाल दिया 1 डाल चुके हो, नहीं डाला 2, अच्छा डाल दिया, ठीक है। 3 ले लो सर, डालोगे तो 2 आएगा। हाँ बोलो सर। इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते ना, मतलब अपन इसको y को, इसमें आप कुछ नहीं खोलना है आपको, सीधी नहीं, इन टर्म्स ऑफ y मत लिखो आप, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप तो सीधा सीधा मॉडुलस देखो कि आपका y कैसा आंसर आ सकता है, y कैसी वैल्यू रखी जाएगी। अब आप देख लो यहाँ y कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा है सारे y पॉजिटिव। सो दैट मींस द रेंज, इसमें आपको प्लस खोलने की जरूरत नहीं है। सर अपन लिखेंगे कैसे, मतलब वहां पर बस खाली ये लिखना है, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी r पॉजिटिव, all the real positive number union 0। सर तो 0, इंफिनिटी 0, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने लिखा r पॉजिटिव मींस ऑल रियल पॉजिटिव यूनियन 0। एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। all real numbers. Find the domain and the range of this function. Domain is again all the real number, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ आप कोई भी वैल्यू रखो ये रियल नंबर दे देगा मुझे, तो डोमेन इज ऑल द रियल नंबर, बिल्कुल ठीक है। रेंज में क्या होगा भाई? वापस सारे पॉजिटिव नंबर फिर से आने हैं, तो वी विल से r पॉजिटिव यूनियन 0। जब भी मॉडुलस फंक्शन है, रेंज हमारे हमेशा r प्लस यूनियन 0 आएगी। लास्ट क्वेश्चन, राइट डाउन ऑन डोमेन एंड रेंज। सर इसमें ग्राफ भी है? बिल्कुल आएंगे ग्राफ। fx is minus modulus x. Find out what should be domain, what should be range. सर ऑल द रियल नंबर्स होंगे सर डोमेन को। Domain is all the real number. Okay. r minus union 0. Domain is all the real number. What about range? सर इस पर सारे नेगेटिव। ये सर ऑलवेज नेगेटिव, प्लस आएगी, बट इसके आगे क्या लगा हुआ है? ऑलवेज नेगेटिव, आर नेगेटिव। Yes, range will be what? Range of the function will be r negative union 0. 0 को तो आप ले ही लो, क्योंकि 0 तो आएगा ही आएगा। क्लियर? तो मॉडुलस का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको काम करना है। एक क्वेश्चन और छूटा है, वो भी खत्म कर ही देता हूं, आज ये पार्ट अपना खत्म हो जाए।
1/2 माइनस साइन 3x। इसका डोमेन और रेंज बात करो। डोमेन शायद मैं बता चुका हूं, रेंज आपको बतानी है। डोमेन विल बी व्हाट? ऑल रियल नंबर। सर क्वांटिटी हमेशा क्या होगी? 1 से -1। साइन 3x ऑलवेज कम बिटवीन -1 and 1। इसका मतलब ये वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है तो ये 0 का कोई चांस ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारा हो गया ऑल द रियल नंबर। रेंज, रेंज के लिए आप इसको लिखेंगे y। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप x इज इक्वल टू वाई की टर्म्स नहीं बना पाओगे क्योंकि साइन लगा हुआ है। तो इसके लिए अलग से काम करना पड़ेगा। वो काम देखो क्या होगा। साइन 3x वी आर बिटवीन -1 and 1, नथिंग रॉन्ग इन इट। हमें चाहिए 2 माइनस साइन 3x। तो पहला काम मैं माइनस सबके चेंज कर रहा हूं। तो ये हो गया +1, यहां ग्रेटर हो जाएगा, यहां हो गया माइनस साइन 3x और ये हो गया -1। Now I'll add 2 on all the side because 2 minus sin 3x चाहिए आपको, तो 2 सब में ऐड कर दो। ये आ गया आपका 3, 2 minus sin 3x coming 1। मुझे क्या चाहिए? 1/2 minus sin 3x। 2 minus sin 3x तो निकल गया। अब मुझे रेसिप्रोकल करना है। अब एक चीज और ध्यान रखनी, जब भी रेसिप्रोकल होता है ये भी रिवर्स होते हैं। इसका मतलब अगर सबको रेसिप्रोकल किया तो ये 1/3 हो जाएगा, ये ग्रेटर हो गया, 1/2 माइनस साइन 3x आ गया और ये 1 हो गया। क्लियर? 1/3। ये किसके, ये क्या था भाई? y था, ये रहा y। इसका मतलब y की वैल्यू Yes, sir. कहां से कहां तक चल रही है? 1/3 to 1/3 से 1। So what is the range of the function will be? It will be from 1/3 to 1। ये आंसर। तो ये एक अलग क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया। नेक्स्ट टाइम आई विल बी स्टार्टिंग विद सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस पे बात करेंगे और कुछ और फंक्शंस पे क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, वो मैं कंप्लीट करूंगा। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू फिनिश आउट दिस चैप्टर। ये फंक्शन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम पे हम इसको खत्म कर दें। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टिंग। अब वो नेक्स्ट चैप्टर आपका इन इक्वेशंस ले लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करेंगे। या कहोगे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज पहले कर लेंगे फिर इन इक्वेशन ले लेंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा कर लेंगे। बट कल क्लास है, ध्यान रखना। जिसने भी टॉपिक नहीं किया है सर टाइम मैंने बोला 5:10 पे मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ओके सर। चालू होगी या 5:05 पे चालू होगी क्लास, और 40 मिनट्स की क्लास होगी। ठीक है, उसमें एक्सटेंशन नहीं देंगे, उसमें आपको 40 मिनट्स का क्लास लेंगे। और इसके बाद दोबारा क्लास में रिवाइज नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। ये प्लीज अब आप ये सारा काम पूरा कर लो।